Hello student, welcome back to the class of PQ and facts. ठीक है, power quality and facts. In previous lecture, we discussed about some guidelines of the harmonic voltage and current limitations. So now in this lecture, we discussed about harmonics current mitigation. ठीक है, mitigation means क्या होता है? Harmonics current को हम कैसे कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं. So today's topic that is harmonics current mitigations. So let's start. What is harmonic current mitigation and how we do that harmonic current mitigation? So basically there are four methods by which harmonic can be eliminated. Okay, हम harmonics को कैसे eliminate कर सकते हैं? तो there are four methods. The first, the device is intended to hold the effect of the harmonics. Like example, कोई भी डिवाइस है अगर वो उसके अंदर हार्मोनिक्स है, ठीक है, उसको होल्ड करके तो देखिए ट्रांसफार्मर, केबल्स, मोटर, जनरेटर्स etc. PWM inverters are generators. PWM inverter are shielded with a special type of insulation to withstand high DI by dt. ये सबको हम PWM inverter यूज कर सकते हैं shielded with special types of insulations जो हमारा high DI by dt को withstand कर सके. And then second one is installations of passive filters. Passive filter को install करके भी filters in the locations close to the supply generator harmonics. ठीक है, जहाँ से हार्मोनिक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, जनरेटर हो रहा है, वहाँ हम इंस्टॉल पैसिव फिल्टर को इंस्टॉल करके भी हम हार्मोनिक करंट मिटिगेशन कर सकते हैं. ठीक है, कैसे तरीके? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनिक कैन नॉट लॉन्ग फ्रॉम द सोर्सेज. ठीक है, तो हार्मोनिक्स अब क्या, जहाँ से हार्मोनिक्स जनरेट हो रहा है वहां से भी हमने फिल्टर यूज कर दिया था, हार्मोनिक आगे या फिर हार्मोनिक आगे नहीं बढ़ पाएगा. ठीक है, so active filter along with harmonic producing equipment can lessen the harmonic at the supply. Active filter use करके भी हम कर सकते हैं. And then isolation transformer, waveform shaping circuitry, multi-level converters and reactors are used inside the harmonic creating equipment to reduce the harmonics. Isolation transformer का use करके भी कर सकते हैं. Wave shaping circuitry है, then multi-level converters. You also heard about multi-level inverter, okay? And reactors also. We use these types of equipment and we eliminate the harmonics. So now we will see few of them in briefly. Okay, तो हम हर एक के बारे में briefly बात करें. तो first हम कोई भी बात कर ले तो डिजाइन और डिवाइसेस. ठीक है, तो सपोज हमको हार्मोनिक्स को कम करना हो तो हम क्या डिवाइस की डिजाइन कैसे करके कम कर सकते हैं? देखिए, the uses of electronic equipment is increasing gradually due to the uses of non-linear load. इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उसके हमको पता है वो क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हमारा जो लोड होता है क्या रहता है? बेसिकली नॉन लीनियर लोड रहता है. Thus the harmonic can be reduced by proper designing of the devices. तो हम हमको पता है नॉन लीनियर डिवाइसेस यूज करके हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है. तो हम हार्मोनिक को रिड्यूस करना हो तो हमको प्रॉपर्ली हमारे जो डिवाइस उसको डिजाइन करना होता है. ठीक है, तो एज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन CFLs, फ्लोरेसेंस लैंप्स, ASTS, UPS एंड बैटरी चार्जर. ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर्ली डिजाइन करके हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, एज एग्जाम आई एक्सप्लेन अर्लियर, द डेटा प्रोसेसिंग यूनिट एम्प्लॉयज SMPS प्रोड्यूसिंग हार्मोनिक. ओके, वो हमने आगे भी बात की थी. SMPS जो हमारा होता है वो हार्मोनिक प्रोड्यूस करता है. तो कॉस्ट इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग द इक्विपमेंट इज टू हाई. ठीक है, जो हमारा कॉस्ट होता है डिजाइनिंग के लिए ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है, डिजाइन करने के लिए तो बहुत ज्यादा हाई होगा. एंड समटाइम मेक्स द इक्विपमेंट बल्की, और कभी कभी वो क्या इक्विपमेंट को बल्कि भी कर सकता है. ठीक है, so today's ESDs are gaining more importance as the focus is to reduce the current harmonics. ठीक है, आज हम क्या देखते हैं तो जो ESDs है वो more gaining more importance. आप किस पे करते हैं तो more important as it focus to reduce current harmonics. ठीक है, earlier क्या यूज करते थे हम? CSIs and VSIs, current source for current source inverter and voltage source inverter used for harmonic reduction, और आज हम यूज कर रहे हैं ESDs. ठीक है, देन हमारा सेकंड जो डेल्टा है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, वो यूज करके भी हम हार्मोनिक रिडक्शन कर सकते हैं. तो देखिए कैसे कर सकते हैं. ट्रांसफार्मर विद सम फेज शिफ्ट कैन बी यूज्ड टू कैंसल द करंट हार्मोनिक्स. ठीक है, हम हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है उसके जो हम सपोज हमारी जो वाइंडिंग होती है या फिर उसका फेज शिफ्ट करके भी करंट हार्मोनिक को कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए ट्रिपल हार्मोनिक जो हमारा थर्ड हार्मोनिक, ट्रिपल हार्मोनिक आर सक्सेसफुली ट्रैप्ड बाय द यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कॉल्ड zigzag configuration. ठीक है, कैसा होता है वो हम आगे फिगर में देखेंगे. दिस ट्रिपल हार्मोनिक गेट्स सम्ड अप
to the neutral of the transformer. ठीक है, triplet can be eliminated by using zigzag connection or by using star 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 delta connection में parallel to the load. ठीक है, zigzag connection करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, हमारा ट्रिपलेट हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर स्टार स्टार एंड स्टार डेल्टा कनेक्शन करके भी वो पैरेलल में एक लोड के साथ कनेक्ट करके भी हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, रिडक्शन कर सकते हैं हार्मोनिक का बाय हैविंग 30 डिग्री फेज शिफ्ट. ये 30 डिग्री फेज शिफ्ट द फिफ्थ एंड सेवंथ हार्मोनिक करंट कैन बी कैंसल. अगर हम 30 डिग्री फेज शिफ्ट करते हैं तो हमारे जो सेवंथ और फिफ्थ हार्मोनिक है वो करंट सॉरी वो क्या हो जाएगा, करंट हार्मोनिक करंट्स कैंसल्ड हो जाएगा. इफ द नॉन लीनियर लोड यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर आर सेम, there is a large chance to of harmonic cancels. ये भी ऐसे भी कर सकते हैं. Sometimes transformer has multiple phase shift and their configuration this. Sometimes क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें मल्टी फेज शिफ्ट्स रहता है. ठीक है, इसके कॉन्फ़िगरेशन से तो इससे क्या होगा, हम सेव कॉस्ट और स्पेस दोनों को सेव कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वन इज दैट zigzag configurations. ठीक है, और बी में आपको गिवन है सर्किट फॉर कैंसलिंग फिफ्थ एंड सेवंथ हार्मोनिक. देखिए zigzag कनेक्शन किस तरह से होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा थ्री फेज ठीक है सप्लाई है और यहाँ से न्यूट्रल कनेक्टेड, इस तरह से हमारा zigzag कनेक्शन रहता है. और इस तरह से यहाँ से हम बीच में देख सकते हैं हमारा स्टार डेल्टा या फिर स्टार स्टार कनेक्शन भी हम देख के हमारा फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक को हम रिडक्ट कैंसिल कर सकते हैं. देन हार्मोनिक फिल्टर का यूज करके भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो हार्मोनिक फिल्टर में क्या होता है कि हार्मोनिक करंट्स आर ड्यू टू द नॉन लीनियर लोड्स can pass through the power lines and to the greater distance and back to the supply. So harmonics are caused by particular loads. ठीक है, तो अगर हम हमारे सिस्टम में नॉन लीनियर लोड है तो क्या होगा, तो हमारा नॉन लीनियर लोड हुआ तो हमारे सिस्टम में हार्मोनिक करंट्स प्रोड्यूस होंगे और वो क्या होगा, हमारे थ्रू आउट द सप्लाई हमारे मतलब क्या होगा, सप्लाई के साथ सॉरी हमारे पावर लाइन से उसके साथ भी ये आगे फ्लो होगा तो हार्मोनिक करंट्स. तो हमको उसको कैसे कर सकते हैं, तो हम हार्मोनिक फिल्टर यूज करके कर सकते हैं. हार्मोनिक फिल्टर बेसिकली टू टाइप्स है, एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर. तो अगर पहले हम बात करें पैसिव फिल्टर की, तो दे एम्प्लॉय पैसिव कंपोनेंट. कौन से पैसिव कंपोनेंट होते हैं, हमको पता है रेजिस्टिव है, कैपेसिटर, इंडक्टर है. ठीक है, तो ये यूज करते हैं. these passive components are set to the frequency फिक्स सेट करते हैं, तो which can filter the harmonics. ठीक है, so based on the resistance and inductor value, low impedance value is given to the filter which will cause the harmonic currents. ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें क्या करते हैं इस फिल्टर में, तो बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर वैल्यू. ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टर की वैल्यू कितनी होती है उसके बेस्ड पे हम करते हैं. सपोज मान लेते हैं अभी हम लो इंपीडेंस है हमारे पास, लो इंपीडेंस हम यूज करते हैं, लो इंपीडेंस वैल्यू इज गिवन टू द फिल्टर. अगर हम फिल्टर है हमको उसको क्या लो इंपीडेंस की वैल्यू हम उसको गिवन कर रहे हैं. ठीक है, दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो व्हिच विल कॉज द हार्मोनिक करंट. वो क्या करता है, will cause the harmonic currents. Okay, so as the impedance is lower, अगर impedance lower है than the source, किससे, हमारे सोर्स से कम है, harmonic current will flow from source to filter. ठीक है, अगर हम मान लेते हैं अभी आगे हमने बात किया क्या है, हमारा जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू है उसके ऊपर बेस दे हमारा हार्मोनिक करंट. अगर सपोज मान लेते हैं सिस्टम में लो इंपीडेंस है, लो इंपीडेंस हम अगर फिल्टर गिवन कर रहे हैं तो क्या होगा, हार्मोनिक करंट कोस उसके वजह से होगा, व्हिच विल कॉज हार्मोनिक करंट. सो एज द इंपीडेंस इज लोअर, as the impedance is the lower than the source. अगर impedance suppose मान लेते हैं हमारा source से lower है, तो harmonic current will flow from source to filter and back to the source. ठीक है, तो उतने में घूमता रहेगा. This keeps the current in the circulations while keeping the harmonic current away from the source and other load. तो इससे क्या होगा, तो हमारा फिल्टर से लेकर सोर्स के बीच में हम करंट सर्कुलेट होता रहेगा, तो वो लोड के पास हार्मोनिक नहीं पहुंच रहेगा. So to remove more harmonic tuned filters can be put in the parallel. ठीक है, like arc furnace example तो क्या given है. So in certain situation computer simulations can be performed. जो computer simulation करते हैं वो भी perform for the entire power system before installation of the harmonic filter. ठीक है, harmonic filter installation करते हैं हम फर्स्ट क्या करेंगे, computer simulation से perform कर लेंगे, देख लेंगे. ठीक है, like MATLAB के अंदर. So the power system is drawn in the computer using simulation software to locate harmonic. Computer simulation में हमारा चल जाएगा कि harmonic कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है. Then the model of the harmonic filter is placed and output is the examined for the whole system. And then आपको मिल सकता है पूरे सिस्टम का आउटपुट मिल सकता है. ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर सिमुलेशन से हमको पता चल सकता है उसकी लोकेशन हार्मोनिक कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम वहाँ पे फिल्टर यूज करके हार्मोनिक को रिडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, if the results are not expected, रिजल्ट जो हमारा हमको चाहिए वो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा, तो देखिए फिल्टर पैरामीटर्स एंड लोकेशन आर चेंज. जो
फिल्टर पैरामीटर है उनको चेंज करना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ जो लोकेशन होगी जहाँ से हमारा हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दे आर सिमुलेटेड अगेन, और दूसरी बार हमको क्या सिमुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ रेजोनेंस सर्किट। वो अगर हमको नहीं पता या फिर हमारा जो रिजल्ट है हमको एक्सपेक्टेड की तरह नहीं है तो हमको ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं बाय यूजिंग रेजोनेंस सर्किट, अगर रेजोनेंस सर्किट यूज कर, ठीक है, रेजोनेंस सर्किट क्या होती है आपने पढ़ा है आगे, तो देखिए रेजोनेंस सर्किट वेयर फिफ्थ एंड सेवंथ हार्मोनिक आर प्रोड्यूस्ड। तो रेजोनेंस सर्किट यूज करके हम हमारे सिस्टम में फिफ्थ एंड सेवंथ हार्मोनिक प्रोड्यूस होंगे। सो वी कैन अवॉइड द फिल्टर द रिवर्बरेटिंग विद द अदर सोर्सेज एंड ट्यून फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर, तो हम यहाँ पे देखिए ये यूज नहीं कर सकते कि हम क्या करेंगे, ट्यून फिल्टर आर यूज्ड फॉर द फिल्टर्स एंड पावर फैक्टर करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्यून फिल्टर फॉर द यूज ऑफ द हार्मोनिक फिल्टर्स एंड द पावर फैक्टर आल्सो करेंगे, ठीक है। और पावर फैक्टर भी हम यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे ट्यून फिल्टर किस तरह से रहता है, यहाँ पे पावर सोर्सेस है, ठीक है, जेड इम्पीडेंस है हमारा, ये एल एंड सी फिल्टर की तरह से वर्क करेगा, और यहाँ पे ठीक है तो इस तरह से हमारा, और ये एल और सी जेड पूरा पूरा इम्पीडेंस, तो ये ट्यून फिल्टर इस तरह से रहता है। और इसका रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो हमारा इम्पीडेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम पे एकदम मिनिमम हो गया, देन क्या होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा इम्पीडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इसका रिस्पॉन्स होता है। देन हम बात करते हैं हमारे एक्टिव फिल्टर की। तो देखिए एक्टिव फिल्टर में क्या रहता है, तो एक्टिव फिल्टर कैन फिल्टर हार्मोनिक विदाउट रिएक्टिव पावर कंसर्न, ठीक है। जो हमारा एक्टिव पावर रहता है वो बेसिकली हार्मोनिक को दूर करता है, फिल्टर करता है विदाउट रिएक्टिव पावर कंसर्न, ठीक है। रिएक्टिव पावर कंसर्न के बजाय वो हमको क्या कर देगा, हार्मोनिक फिल्टर कर देगा, फिल्टर हार्मोनिक। Thus, the rating of passive filter is less than that of the passive filter for same power and non-linear. Rating of passive active filter is less than of the passive filter that same power and non-linear load. They don't produce resonance. यहाँ पे हमारा active filter होता है वो resonance produce नहीं करता. So the major advantages of the active filter is it can respond to variable load. तो ये हम variable loads में भी respond कर सकता है, इसलिए इसका major advantages है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारी एक्टिव फिल्टर कैसे रहती है, यहाँ पे पावर सोर्स है, ठीक है, आई सोर्स है, आई है, ठीक है। एक्टिव फिल्टर हमने यहाँ पे यूज किया है, देन लोड है हमारा, और यहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर लोड से या फिर जैसे ये हमारे नॉन लीनियर लोड होते हैं, तो उसको भी क्या है, उसमें भी हमारा रिस्पॉन्ड अच्छी तरह से करता है, क्लियर। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में, तो वो कैसे कर सकता है। तो देखिए एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू रिमूव हार्मोनिक in many cases. It has tendency to step down or step up voltages, ठीक है, providing solution for faults. तो उस दौरान भी हम कर सकते हैं, fault होगा तो उसको step down कर सकता है। And they are best when used in AC to DC drives, ठीक है। जब इसका यूज हम बेस्ट होगा कब, जब हम AC to DC, ठीक है, AC to DC ड्राइव यूज करते हैं तब इसका यूज हमको बेस्ट होता है। एंड विच एम्प्लॉय ACR फॉर एक्टिव, ठीक है, तो वो हम इलेक्ट्रिफिकेशन के दौरान करते हैं और बहुत काम आता है, ठीक है, वहाँ पे बेस्ट है ये। देन यूज ऑफ रिएक्टर्स कैसे कर सकते हैं, तो मोर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड फॉर साइज एंड कॉस्ट, दे आर मोस्ट प्रिफर्ड देन द लाइन रिएक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक, ठीक है। ये देखिए हमारी जब ये ना फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड, क्यों, इसकी साइज एंड कॉस्ट की वजह से ये हम इसको मोस्ट प्रिफर्ड करते हैं इन कंपेयर टू द लाइन रिएक्टर, ठीक है। ओनली रिएक्टर को यूज करते हैं फॉर द हार्मोनिक एलिमिनेशन। सो एसी ड्राइव लाइक डायोड, ब्रिज, रेक्टिफायर आर जनरली यूज्ड फॉर द लाइन रिएक्टर, ठीक है। लाइन रिएक्टर की तरह के हम किसको यूज करते हैं, नथिंग बट एसी ड्राइव्स लाइक डायोड, ब्रिज, रेक्टिफायर, इसको हम यूज करते हैं। सो लाइन रिएक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। लाइन रिएक्टर आप देख सकते हैं हमारे दो लाइन रिएक्टर, इसको हमने सॉरी लाइन रिएक्टर में क्या होता था, लाइन रिएक्टर सीरीज में कनेक्ट कर देते थे विद द नॉन लीनियर लोड्स, ओके, इस तरह से रहता है। बाय कनेक्टिंग द इंडक्टेंस इन सीरीज दे कैंसल हार्मोनिक एज वेल एज द सिंक वोल्टेज ट्रांजिट, ठीक है। अब देखो हमने दोनों को कनेक्ट किया है, ठीक है, सीरीज में, तो उसके अंदर जो रिएक्टेंस वो भी सीरीज में कनेक्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, तो ये हमारा जो हार्मोनिक होगा उसको कैंसिल तो करेगा, साथ साथ जो सिंक वोल्टेज रहता है उसको भी ये कैंसिल करता है, ठीक है। सिंक वोल्टेज क्या करता है, व्हिच कॉज द एएसटी टू फेल ऑन ओवर वोल्टेज, ठीक है। सिंक वोल्टेज जो होता है वो हमारे एएसटी होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करने जब फेल करता है एट द ऑन द ओवर वोल्टेज, क्लियर।
सो अभी जो हमने बात की तब थोड़ा बहुत देख लेते हैं समरी ऑफ इफेक्ट ऑफ द हार्मोनिक्स ऑन इक्विपमेंट। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट रह सकती है हार्मोनिक्स की ऑन द इक्विपमेंट पे। तो सपोज मान लेते हैं हमारा इक्विपमेंट कैपेसिटर हमने लिया है अभी, तो इसकी इफेक्ट क्या रहती है। तो देखिए हार्मोनिक्स आर एलिमिनेटेड बाय डिक्रीजिंग कैपेसिटर इम्पीडेंस। ठीक है, इससे हम कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट क्या हो सकता है, कैपेसिटर हीटिंग ड्यू टू द इंक्रीज लॉसेस। ओके, देन ड्राई कैपेसिटेंस कैन नॉट जनरेट एक्सेस हीट एंड आर सेंसिटिव टुवर्ड द हार्मोनिक्स। ड्राई कैपेसिटेंस होता है वो जनरेट नहीं कर सकता है एक्सेस हीट एंड आर सेंसिटिव टुवर्ड द हार्मोनिक। वो क्या होता है, हार्मोनिक्स से बहुत सेंसिटिव होता है। सो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट हो सकता है बर्न आउट फ्यूज हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। एंड अगर थर्ड इफेक्ट की बात करें तो कैपेसिटर यूज्ड इन पीसीज आर सेंसिटिव, पता है। ठीक है, जो कैपेसिटर हमारे पीसी में वो बहुत सेंसिटिव होते हैं एज दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय फ्यूज। अगर वो फ्यूज से प्रोटेक्ट नहीं होते तो ठीक है, वो प्रोटेक्ट नहीं होते, बर्न आउट फ्यूज कैपेसिटर। तो यहाँ से क्या होगा, तो हमारा जो कैपेसिटर होगा वो एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो देखिए इसमें क्या इफेक्ट होती है, वोल्टेज हार्मोनिक कोज हायर ट्रांसफार्मर वोल्टेज। तो वोल्टेज हार्मोनिक्स होगा तो और ज्यादा हम क्या हो जाएगा इसके अंदर हायर ट्रांसफार्मर वोल्टेज हो जाएगा। और इससे क्या होगा, अगर हायर वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर, जो हमारे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसका इंसुलेशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, सो एंड कॉजेस स्ट्रेस इन द इंसुलेशन। इससे क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तो हमारा ट्रांसफार्मर को हीटिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हीटिंग होगा, हीटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर और लेस, इससे हमारी लाइफ होती है हमारे इक्विपमेंट की वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेस इक्विपमेंट लाइफ। इसके अलावा और क्या है, कॉपर एंड आयरन लॉसेस भी हो सकते हैं एंड स्ट्रेन इन इंसुलेशन। ओके, अब मोटर्स की बात करें तो वो इसमें इफेक्ट होती है मोटर लॉसेस। तो रिजल्ट क्या होता है, मोटर हीटिंग होगा। ठीक है, नॉइज एंड शेकिंग हो सकता है, मोर ड्रॉप स्टॉर्स हो सकते हैं, लॉसेस इन स्टेटर एंड रोटर हो सकते हैं, एफिशिएंसी लॉस हो सकती है, लेस लाइफ हो सकती है, वोल्टेज स्ट्रेस इन प्राइमरी एंड ऑल्सो सर्किट सर्किट ब्रेकर की बात करें तो बर्नआउट ऑफ कॉइल्स। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट ब्रेकर फेलियर हो सकता है। ठीक है, वॉट आवर मोटर होती है हमारी या फिर ओवर करंट रिले होता है, तो उसमें क्या होता है, मोर टॉर्क ऑन द इंडक्शन डिस्क ड्यू टू द इंक्रीज हार्मोनिक। ठीक है, ये हार्मोनिक इंक्रीज होगा तो हमारी जो डिस्क होती है उसमें बहुत ज्यादा टॉर्क होगा, सो व्हिच कॉजेस इम्प्रॉपर ऑपरेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो रीडिंग होता है वो करेक्ट नहीं होती है। ठीक है, इनकरेक्ट रीडिंग हमको मिलती है। एंड जो लास्ट वन वाला हमारा है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर कंट्रोल इक्विपमेंट। उसमें हार्मोनिक इफेक्ट क्या होती है, तो हार्मोनिक अफेक्टेड जीरो क्रॉसिंग एंड पीक वोल्टेज। ठीक है, जो जीरो क्रॉसिंग रहता है उसमें पीक वोल्टेज रहता है, उसमें इफेक्ट होती है। उसका रिजल्ट होता है हमारा जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट डिवाइस वो फुली नहीं हो सकता एंड अर्ली फेलियर ऑफ डिवाइस हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट वन क्या है, जो हमारा अनप्रिडिक्टेबल ऑपरेशन, जो ऑपरेशन रहता है वो प्रिडिक्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो ये सब हमारे हमने पढ़ा था जो हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 दैट इज हार्मोनिक। तो आज ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, सो आई होप जो आज का कंटेंट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।